रोमांस, जी आप लोग सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन रोमांस, मोहब्बत, प्यार, इश्क, और सेकंड प्रायोरिटी पे था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी नौकरी हो। ये नहीं कि करोड़पति हो लेकिन कमाता जरूर हो, एक कोई ना कोई नौकरी हो। उसके अलावा इज्जत करे, यानी रिस्पेक्ट, उसकी भी इज्जत करे, उसके घर वालों की, अपने घर वालों की, बड़े छोटे सबकी, प्रॉपर रिस्पेक्टफुल इंसान हो। उसके अलावा सिक्योरिटी, तहफ्फुज, एंड देन फाइनली हैंडसम हो। तो यानी कि अगर 5 चीजें हैं तो एंड पे है कि गुड लुकिंग हो। उससे पहले रोमांस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इज्जत करे और तहफ्फुज, ये चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। तो जो मर्द हजरात ये कहते हैं कि आजकल की लड़कियां सिर्फ पैसों के पीछे भागती हैं और एक अमीर शौहर चाहती हैं, तो मेरे ख्याल से वो गलत सोचते हैं। हाँ, कौन सी लड़की ये नहीं चाहेगी कि उसका हस्बैंड कमाता हो, लेकिन करोड़पति आजकल के जमाने में कम लोग होते हैं। एक अच्छा डिसेंट आदमी हो जो डिसेंट इनकम और घर को चला सके, इससे ज्यादा खवातीन नहीं चाहती मेरे ख्याल से। लेकिन आप लोगों से सवाल ये है, मर्द हजरात से ये सवाल है कि आप जब शादी के बारे में सोचे तो आप क्या कंसिडर करते हैं, आपको किस किस्म की जो लड़की है वो चाहिए। डू यू वांट पॉजिटिव? सर मैं, अगर आपको सॉरी जी, किचन में भी ठक ठक चल रही है तो मेरी एक सेकंड के लिए कंसंट्रेशन इधर उधर हो गई जी। तो मर्द हजरात जो हैं वो किस किस्म की लड़की चाहते हैं? डू दे वांट अ गर्ल जो गुड लुकिंग है सिर्फ, क्या, या जो कमाती है, क्योंकि आजकल डबल इनकम हाउस होल्ड हो गए। तो मर्द हजरात क्या चाहते हैं और खवातीन हजरात भी क्या चाहती हैं? हजरात नहीं, खवातीन क्या चाहती हैं? तो छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद और बातचीत करेंगे। रहमत की बिखरी हुई खुशबू, जमीन है बनी फरिश्तों का मकाम, खुदा ने कर लाया रमना, नूरे खुदा है चार सू, नूरे खुदा है चार सू,
ویلکم بیک جی. چند دن پہلے سے ہم آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں یہ عمدہ کلام. آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے کہ یہ ہمارے کون سے پاکستان کے لیونگ لیجنڈ سنگر نے پڑھا ہے. تو پلیز ہمیں کال کریں, میسج کریں, ای میل کریں اور ایس ایم ایس کر کے بتائیں. کال کرنے کے لیے 042992000647, ای میل mj@ptv.com.pk, ایس ایم ایس کریں MJ اسپیس آپ کا نام آپ کا میسج 7886 پہ. فیس بک پہ www.facebook.com/morningwithjugan اینڈ پوسٹل ایڈریس 21 محمود غزنوی روڈ, PTV سینٹر لاہور. اینڈ چائنیز ویک چل رہا ہے, شیف بلال ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس الحمدللہ. اچھا بلال بھائی مجھے یہ بتائیں, ہم لوگ کا آج کا جو سوال تھا مردوں سے اور خواتین سے, پہلے تو اس کا جواب دیں. پہلی کوالٹی جو کوئی, جب آپ ینگ تھے تو آپ کیا ڈھونڈتے تھے؟ ابھی بھی آپ ینگ ہیں لیکن اب آپ میرڈ ہیں تو ذرا لائف ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. تو میرج سے پہلے آپ کیا ڈھونڈتے تھے, ایک پہلی کوالٹی سب سے امپورٹنٹ ان اے وائف, اور اب اگر آپ کو وہی بات پھر سے آپ سے پوچھی جائے تو وہ کیا ہوگی؟ میری پہلی کوالٹی جو میں پہلے تو یہ تھا کہ بس شادی کرنے کا کوئی ایسا پلان وغیرہ نہیں تھا, سوچا نہیں تھا کہ یہ تھا کہ جی کریں گے دیکھیں گے, لیکن کوالٹی یہ تھی کہ سیرت ہو اور نماز. جب کالج وغیرہ میں تھے یہ نہیں تھا ہوتا کہ بیوی گڈ لکنگ ہونی چاہیے؟ نہیں ایسا نہیں. بات یہ کہ دیکھیں سیرت جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے, ٹھیک بات, اور خوبصورتی ایک دن ڈھل جاتی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, بعض لوگوں کی خواہشات ہوتی ہے کہ جی خوبصورت بھی ہونی چاہیے, بعض لوگوں کی, میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جی خوبصورت ہونی چاہیے, اچھی جاب ہونی چاہیے, اچھی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, اور پیسہ ہونا چاہیے اس کے پاس, لڑکی کے پاس. یہ تو الٹا اور ہاں یہ حقیقت ہے. اور جی وہ میرے سے اچھی پوزیشن پہ ہونی چاہیے, میرے برابر کی ہونی چاہیے, اور خوبصورت ہونی چاہیے, اور بندہ ایسے ہی ہوگا للو سا. تو یعنی کہ آج کل یہ دور بھی آگے ہے کہ یار میں نے کہا اگر اس کو ایک دوست ہے, اس کا ایک دوست ہے, وہ یہ چیزیں چاہتا ہے, میں نے کہا اگر اس کو اگر یہ چیزیں چاہیے تو وہ لڑکی پاگل ہے وہ جو اس کے ساتھ شادی کرے گی کہ تم ہے نا ہینڈسم ہو, ٹھیک ہے تمہارے پاس ایک جاب ہے, اتنی خاص جاب نہیں ہے لیکن بس ہے, نہ گاڑی ہے نیچے کچھ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کو بنگلہ بھی چاہیے, سب کچھ چاہیے, اور ایسی حسین لڑکی بھی چاہیے. شادی کے بعد آپ کے خیال سے وہی مینٹین کرتے ہیں جو آپ شادی سے پہلے کرتے تھے کہ سیرت اچھی ہونی چاہیے؟ ہاں, شکل صورت تو ایسے بہت اچھی بات کی. تسلیم کی کال ہے, ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں, دین ویل کم ٹو اچھا ریسیپی. السلام علیکم تسلیم جی کیسی ہیں آپ؟ دیکھو ٹھیک ٹھاک, آپ سے محبت ہو گئی ہے. وعدہ کریں. دیکھ لیں, اب ڈیلی آپ کو فون کرنا پڑتا ہے, محبت ہے نا. صبح دیکھ لیں, آپ نے میرے خیال سے پہلے کہا تھا کہ کال بڑی مشکل سے ملتی ہے, تو ہم نے سوچا کہ آپ دیکھ لیں, اور یہ ہے کہ محبت سچی ہے تو دیکھ لیں کیسے ملتی ہے. یہ تو میں نے سوچا نہیں تھا, اب اصل میں محبت شروع ہوئی ہے آپ سے میری. دیکھ لیں نا سچی والی. اچھا تسلیم, ہم بلال بھائی سے بھی ہم پوچھ رہے تھے کہ کیا کوالٹیز ہونی چاہیے ایک وائف میں آپ کے خیال سے؟ ہسبینڈ کا بتاؤں گی نا کوالٹی کیا ہو, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ جو نہ ہو تو شادی نہیں ہو سکتی, وہ والی کوالٹی بتائیں, اور پھر بتائیں کیوں نہ ہو. دیکھیے اگر وہ کماتا نہیں ہوگا نا, یہ کوالٹی اس میں نہیں ہوگی, میرے خیال میں نہیں ہے. ایک وہ کمانے والا ہو, اس کی اچھی پڑھائی, اگر وہ کمائے گا, پڑھا لکھا ہوگا, وہ آپ کو کبھی بھوکا نہیں رکھے گا. دوسرا اسے تحفظ کا احساس ہو. جیسے تو میں یہی چاہتی ہوں کہ باقی ڈالر یا کروڑ پتی ہونا سب کچھ نہیں ہے. آپ کو تحفظ نہ ملے, پیار نہ ملے, یہ چیزیں نہ ملے تو کروڑ پتی ہو تو آپ کیا کریں گی؟ آپ کی رسپیکٹ کرے, آپ کی فیملی کی رسپیکٹ کرے. اچھا تسلیم, ہم نے یہ بھی پوچھا ہے کہ جو کلام ہم نے سنا ابھی آتے ہوئے بریک کے بعد, وہ کنہوں نے پڑھا ہے؟ کس نے پڑھا تھا؟ راحت فتح علی خان نے. چلے تھینک یو, اینڈ میں بتائیں گے صحیح کے اینڈ میں بتائے گی. اچھا کیسے وہ اینڈ میں ہماری لائف چلی جاتی ہے, میں کیا کروں, میں نے کل بھی نہیں سنا تھا. نہیں, وہ بات یہ ہے کہ یہ اینڈ میں ایز این ابھی نہیں, ویک کے اینڈ میں میں کل بتاؤں گی, کل تک, اور کل بھی انشاءاللہ آپ کی فون کال آنی چاہیے پہلی. کل بھی نہ کروں گی, اینڈ میں میرا نام نکلے گا. اچھا, اور ایک اور بتاؤ تسلیم, کل کیونکہ ہمارا لاسٹ ڈے آف ہمارا چائنیز ویک, تو کوئی آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے شیف بلال سے چائنیز میں کوئی ایسی ڈش؟ چائنیز میں پتا مجھے, آپ نے نا وہ یہ جو رمضان آ رہا ہے نا, چائنیز پکوڑے ایک میں نے کھائے تھے, بڑے مزے کے تھے. مجھے آپ نے نا اس کی ریسیپی بتانی ہے. کس کی؟ بڑا چائنیز پکوڑے تھے, اس میں بڑی وہ نا چکن بڑا پکوڑا. ہاں جی, نہیں وہ کہہ رہی ہے چکن پکوڑے. چائنیز پکوڑے کی بات کر رہی ہے, چکن وہی تمپورا ہی ہوگا. چائنیز پکوڑے کی بات کر رہی ہو کہ چکن پکوڑے کی؟ ایک تو ہوتا ہے نا بیسن والے جو بنتے ہیں چائنیز پکوڑے, چکن پکوڑے, جو میں نے پاکستان میں ہی کھائے ہیں اور کہیں دنیا میں نہیں کھائے. ہاں پاکستانی کھائے ہیں میں نے, پاکستانی. ہاں, میں وہ پورا نہیں کہہ رہی ہوں, دوسرا کہہ رہی ہوں. چکن پکوڑا ہوگا نا, وہ چائنیز نہیں ہوگا نا.
चाइनीज मतलब उनका नाम चाइनीज था, अंदर उसके टेस्ट भी ऐसे ना चाइनीज की तरह। उसमें क्योंकि वो चाइनीज सॉल्ट डाल देते हैं यार। अच्छा, थैंक यू सो मच तस्लीम मेरी जान, आपसे कल बात होगी। अब आपसे कल फिर इंशाल्लाह बात होगी, आपकी कॉल आनी चाहिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग, वरना हमारा कुकिंग का टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो हमारी आज की सिलेक्टेड रेसिपीज क्या हैं? आज की हमारी सेचुआन फिश हम बना रहे हैं। सेचुआन फिश हम इसमें सेचुआन फिश को हम स्लाइस कर लेंगे, उसको सॉल्ट पेपर और मैदा और थोड़ा सा अंडा लगा के उसको हम फ्राई कर लेंगे ऑयल में, और उसके बाद उसको हम निकालेंगे। उसके लिए सॉस बनाएंगे जिसमें अदरक लहसुन को हम थोड़ा सा भूनेंगे, उसमें कुटी हुई लाल मिर्च और चिली पिकल डालेंगे और ग्रीन चिली स्लाइस करके डालेंगे और उसको थोड़ा सा हम पकाएंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा स्टॉक डाल देंगे, सोया सॉस और oyster सॉस डाल के स्टॉक डाल के उसको पकाएंगे और उसको फिर गाढ़ा करके उसको हम सॉस के साथ उसको टोस्ट करेंगे। और साथ में हम बना रहे हैं सेसमी हनी चिकन भी, हनी चिकन बना रहे हैं। उसके लिए ये है सेसमी हनी चिकन में ये है कि जी हम इसमें जो है इसका चिकन का बैटर बनाएंगे, उसमें बेसन और कॉर्नफ्लोर, अंडा, सॉल्ट एंड पेपर डाल के मिक्स करेंगे। उसमें चिकन को हम फ्राइड कर लेंगे। फ्राइड करने के बाद सोया सॉस भी, ऑफकोर्स सोया सॉस, थोड़ी सी चिली सॉस में डालेंगे। फ्राई करने के बाद उसको हम बैटर में डिप करेंगे और उसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, हमने लेना है पैन में हमने डालना है आपका हनी को थोड़ा सा गर्म करके चिकन को फिर हम उसमें डालना है, उसको उसके टोस्ट करना है। अब एक सवाल, सेसमी ना सड़े और हनी ना जले, क्योंकि हनी भी जल जाती है, सेसमी सीड्स भी जल जाते हैं। तो मैंने एक दफा बनाने की कोशिश की थी, काले सेसमी सीड हो गए थे और शायद बेचारा जो है वो नहीं, आपने उसको ज्यादा देर नहीं डालना है, रखना है उसको। कितनी देर के लिए? थोड़ी जस्ट फ्यू सेकंड उसको हॉट पैन में डालना है आपने, हनी डालनी है। उसके बाद आपने चिकन डाल देना है, चिकन को टोस्ट करना है। उसके बाद उसमें आपने सेसमी डालना है, सेसमी डाल के उसको फौरन से टोस्ट करना है। पहले नहीं डालना, पहले नहीं डालना, एंड में डालना है। फिर उसको आपने टोस्ट करना है, फिर उसको आप निकाल लेना, उसको सर्व करना है। और ये अगर हमें फिर से सर्व करना हो, अगर दोपहर को खाए और शाम को फिर खाना? नहीं, दोबारा नहीं इसको कर सकते। ये तो चाइनीज फूड एक ऐसा है कि आप उसको जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्राइड कोई भी आइटम होगी, आप उसको फौरन सर्व करें। सेचुआन जो है वो बिल्कुल सौगी हो जाएगी, सौगी हो जाएगी। और दूसरी हाँ, ये चीज ऐसी है कि ये आपने फौरन अलग में सर्व करनी है। कॉन्टिनेंटल फूड हमेशा यही है कि जी आपने इसके अलावा स्ट्यू के अलावा कोई ब्रेस्ड और या कोई ऐसा मीट हो, उसके अलावा आप सेसमी चिकन की आप रेसिपी देख लें व्यूअर्स, हम लोग जरा जल्दी बता दें, अब वो भी देख लें जल्दी से, क्योंकि वो हमने उनकी नजर से नहीं गुजारी। एक बार फिर से इंग्रेडिएंट्स बता देंगे? जी हाँ, सेसमी चिकन का इसमें हमने सोया सॉस, चिकन को मैरिनेट करना है, सोया सॉस, चिली सॉस, सॉल्ट एंड पेपर, और हमने इसका बैटर बनाना है कॉर्नफ्लावर और मैदा और अंडा डाल के, इसको सॉल्ट डाल के उसमें इसको बैटर बना लेना। बैटर बना के फिर हमने इसको डिप करके इसमें फ्राई करना है ऑयल में। ठीक है, चिकन को फिर हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद फिर हम इसको हनी हमने पैन में डालना है, गरम पैन में थोड़ा सा गरम करना, उसमें हमने चिकन डालना है। चिकन डाल के थोड़ा उसको टोस्ट करना है। फिर उसके बाद हमने इसमें सेसमी डाल देनी, सेसमी डाल के अच्छी तरह इसको टोस्ट करना। थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर का, ब्लैक पेपर को ऊपर से टच दे दीजिएगा, दैट्स फिर उसको सर्व करेंगे। और राइस हम बना रहे हैं सिंगापुरी चिकन राइस। सिंगापुरी चिकन राइस बेसिकली सिंगापुरी राइस में बीफ डलता है, तो मैंने उसको चिकन से वेरिएट किया कि लोग हमारे ज्यादातर बीफ अवॉइड ही करते हैं। और बीफ अजीब सा कुछ हुआ है, कुछ लोग बिल्कुल ही चिकन खाना छोड़ चुके हैं और कुछ बिल्कुल बीफ खाना छोड़ चुके हैं। हाँ, चिकन की बात यह है कि चिकन आजकल जो हमारे पाकिस्तान में जिस तरीके से उसको फीडिंग हो रही है, जिस तरीके से लोग उससे थोड़ा सा अवेयरनेस हो रहे हैं, खासतौर पे मीडिया में जो ये बातें उठाई जा रही है। लेकिन अच्छी कंपनी का चिकन आप लें, मार्केट में अवेलेबल है, जो फ्रोजन चिकन है वो लें, वो ज्यादा बेहतर है बानिस्बत उसके फ्रेश के। ठीक है, वो एक सही तरीके से उनको फीडिंग दे रहे हैं और प्रॉपर तरीके से उनको रख रहे हैं। तो ये है कि इसमें हमने क्या करना है कि इसमें हमने राइस उबाल लेना है, राइस उबाल के हमने साइड पे रख देना है। उसमें हमने क्या करना है, सैलरी हमारे पास थोड़ा, हमने सैलरी एक काइंड ऑफ वेजिटेबल उसको बाजार में मिल जाती है आज। ये तो वो वाली है ना जिसको हम उसी तरह कहते हैं ना कि अगर बंदा मोटा हो रहा तो सैलरी स्टिक्स खा लिया करो। हाँ, और कैरेट स्टिक्स। ये जो सैलरी स्टिक के पत्ते हैं ये लोकल है, अदरवाइज जो लोकल है। हाँ, ये लोकल है। और इसकी स्मेल बहुत प्यारी है, खुशबू बहुत प्यारी है, और ये स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है, ठंडी होती है। और गर्मी में अगर इसको आप इसका सूप बना के पिए या इसका जूस बना के थोड़ा सा आप इसको ग्राइंड करके पानी के अंदर डाल के पिए, थोड़ा सा नमक डाल लें या शुगर डाल लें,
पिए, इट्स वेरी गुड फॉर तासीर इसकी ठंडी है, बहुत अच्छी है। किसी की नफसीर वगैरह फूटती है तो वो ये खाया करें, इसको कच्चा भी खाएं तो बड़ी अच्छी चीज है ये माह रमजान में आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। ये आजकल सीजन है, क्योंकि बरसात हुई है तो ये इसमें ग्रो होना शुरू है, क्योंकि गर्मी में ये नहीं उगती। लेकिन बाहर की यूरोपियन अब आजकल इम्पोर्टेड आती है दुबई वगैरह से, इतने बड़े बड़े और, आते हैं, और वो बहुत ही यूरोप में तो बहुत ज्यादा खाई जाती है ये चीजें, हर खाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खुशबू स्मेल बहुत अच्छी है, सूप भी बड़ा अच्छा बनता है इसका, टेस्ट भी बहुत अच्छा था, फ्रेश। हाँ, तो ये हम डालेंगे इसमें मशरूम सोडा स्लाइसेस में डालेंगे हम, ये डाल के गार्लिक और हमने जिंजर ऑयल में इसको सोते करना है। सोते करने के बाद हमने क्या करना है, इसमें उसके चिकन डाल देना, चिकन को सोते करना, उसमें सैलरी, कैरेट, जूलियन कैरेट, मशरूम स्लाइस ये हमने उसमें डाल देना, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई ये आपका क्या कहते हैं चिली, ग्रीन चिली, ये डाल देना है, मशरूम स्लाइस करके डालना है। उसको हमने थोड़ा सा टोस्ट करना है, सोया सॉस एंड ऑयस्टर सॉस डालना है, फिर उसके बाद हिलाना है उसको। उसके बाद फिर हमने राइस इसमें डाल के इसको हमने अच्छी तरीके से टोस्ट करना है, ठीक है। और इस टोस्ट करके इसको हम सॉल्ट पेपर का टेस्ट देके इसको हम सर्व करेंगे। Brilliant. So 3 very yummy recipes, very different recipes, and definitely रमजान मुबारक भी बिल्कुल around the corner है, तो आप definitely हमने पूरे इस वीक आपको बहुत सी डिफरेंट चाइनीज रेसिपीज बताई हैं, तो आप उनको भी एक प्रॉपर एक चाइनीज इफ्तारी भी कर सकते हैं, जिसमें आप सारी चाइनीज उसे सर्व करें।